everyone. So welcome back to Biology Funda, and this is your facilitator Zabi Fatma. As I started the chapter, the unit Kingdom Classification, and in that unit I have already discussed about Kingdom Monera. Okay, so in today's lesson I am going to discuss about the division of Kingdom Monera, and the division that is broadly classified into three parts, that is Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria. Okay, so today I will discuss about some important features of Archaebacteria and some important features of Cyanobacteria. As basically I am taking only those points which is very important according to the exam point of view. Okay, यहाँ पे तो बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बैक्टीरियाज के, या फिर आर्कीबैक्टीरिया हो या यूबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, बट मैं कुछ वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डील करूँगी जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट होंगे और बेसिकली वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम्स में. सो लेट स्टार्ट. So the first classification of Kingdom Monera, or the first type of bacteria that include in Kingdom Monera, is Archaebacteria. Okay, Archaebacteria is considered as the oldest anaerobic bacteria. It means that the bacteria that evolved in the ancient time or in the primitive kind of a structure which can be seen in the bacteria is Archaebacteria. Okay, there is no development of cell organelles, or the nucleus will also be incomplete development. So such kind of bacteria will come in Archaebacteria, and they are saying that it will be an anaerobic bacteria. Why anaerobic? Because they will do all the activities in the absence of oxygen. Okay, anaerobic is the process in which all the activities can be done without the presence of oxygen, that is in the absence of oxygen. So such kind of bacteria is called as anaerobic bacteria. Now the second point of the Archaebacteria is that in which condition it can survive. So the Archaebacteria can survive in high salt concentration and acidic region or high temperature. It means that कि Archaebacteria जो है उसको सर्वाइव करने के लिए और अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन या तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए उस एरिया में या उस रीजन में. मींस अगर वो किसी वाटर में या किसी पानी में है तो उस वाले वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्टी होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है, या तो बैक्टीरिया वैसे एरिया में ज़्यादा ग्रो करेंगे जहाँ पे एसिडिक रीजन होगा. ओके, इट मीन्स कि मार्शी एरियाज जैसे कि दलदल वाला एरिया, उस एरिया को हम लोग एसिडिक रीजन कहेंगे. और टेम्परेचर शुड बी हाई, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स. सो दिस इज द फेवरेबल कंडीशंस इन विच द Archaebacteria कैन ग्रो एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. नाउ वी विल सी दैट Archaebacteria इज डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड वेयर इट फाउंड, on that basis the Archaebacteria is divided into 3 groups. So the first group is Methanogens, second is Halophils, and the third one is Thermoacidophils. अब ये जो हमारा जो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है Archaebacteria को, ये किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या Archaebacteria को जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ये देखकर हुआ कि ये किस एरिया में खुद को ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं और इसका प्रोडक्शन क्या है, मतलब ये किस तरीके का फंक्शन करते हैं. तो उस बेसिस पे जो पहला ग्रुप था वो मेरा था मिथानोजेंस. ओके, हेयर मिथानोजेंस मीन्स द बैक्टीरिया विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस. आप लोगों ने 10th क्लास में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CH4, दैट इज़ द मीथेन गैस. सो इन दैट पोर्शन Archaebacteria, that is methanogens, involved in the formation of methane. So the first point of methanogen is produce methane gas, that is CH4. अब बात आती है कि मिथानोजेंस जो Archaebacteria है वो हम लोगों को किस रीजन में देखने को मिल सकते हैं या कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ ये सर्वाइव करेंगे. देन दे कैन लीव इन मार्शी एरियाज. वैसे एरिया में ये खुद को ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा सर्वाइव करेंगे जो दलदल वाला एरिया होगा. सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज मार्शी एरियाज. Now the third point of methanogens, or the third feature of methanogens, is also found in gut or rumen of cattle. अब बात आती है कि मिथानोजेंस जो हैं वो एक तो मार्शी एरियाज जो होगा वहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और दूसरी जगह जो ये खुद को ज़्यादा की क्वांटिटी में अपने आप को बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो वो जो है वो rumen of cattle होता है. मीन्स द इंटेस्टाइन ऑफ काउ, गॉट और बुफेलो. ओके, तो उन सारे कैटल्स में
मिथानोजेंस जो है वो ईजिली ग्रो कर सकते हैं। क्यों करेंगे ईजिली ग्रो? क्योंकि इंटेस्टाइन में जो है वो हाई टेम्परेचर उनको मिलता है, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। उस कंडीशन में खुद को ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिथानोजेंस बैक्टीरिया। सो दिस इंक्लूड मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम। ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चंस हो या फिर मेडिकल के क्वेश्चन हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ये। इसमें ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा आर्की बैक्टीरिया है जो कैटल के र्यूमेन में देखने को मिलता है। सो सच काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज मिथानोजेंस। ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन भी आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथानोजेंस। नाउ लेट्स सी द सेकेंड ग्रुप। The second group of archibacteria is halophils. Okay, so those bacteria which live in salty areas, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो कि समुद्री रीजन में ज़्यादा पाया जाता हो या जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में हैलोफिल्स जो है वो खुद को ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। सेकेंड, अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी फॉर्म पर्पल कलर्ड पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ओके, सो हियर इट इज सेइंग दैट अगर हेलोफिल्स को ज़्यादा इंटेंसिटी में लाइट मिलती है, सनलाइट अगर ज़्यादा इंटेंसिटी में वो गेन करते हैं, तो उस कंडीशन में इनके पास एक एक्टिविटी होती है जिसमें कि वो एक पर्पल कलर का पिगमेंट ग्रो कर लेते हैं। लाइक हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट भी है जो कि बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स में या फिर साइनोबैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे जो हैलोफिल्स है वो ज़्यादा सनलाइट के इंटेंसिटी में अपने बॉडी में एक पर्पल कलर का पिगमेंट ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ओके, और ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन का फंक्शन ये होता है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन में, एटीपी फॉर्मेशन या एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोफिल्स। अगर मिथानोजेंस का पूछा जाएगा तो मार्शी एरियाज में मिलेंगे, और अगर हैलोफिल्स का पूछा जाएगा तो सॉल्टी एरियाज में मिलेंगे। नाउ लेट्स सी द लास्ट ग्रुप ऑफ द आर्की बैक्टीरिया इज थर्मोएसिडोफिल्स। सो थर्मोएसिडोफिल्स, हेयर थर्मो इट सिंपली इंडिकेटिंग कि टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। थर्मल बेसिकली हम लोग टेम्परेचर के यूज़ करते हैं। सो हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ज़रूर ग्रो करेंगे, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया। सो फाउंड इन एसिडिक एरियाज एंड हाई टेम्परेचर। सी हेयर इट इज़ रिटन हाई टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा वहाँ पे ये गर्म वाले इलाका जो है, रीजन जो है, उस एरिया में ये ज़्यादा ग्रो करेंगे, और प्लस उस एरिया का या उस रीजन का कंडीशन एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक मीन्स कि अगर हम एसिडिक बोलते हैं तो हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? पीएच वैल्यू से। तो इट मीन्स कि एसिडिक कंडीशन में पीएच वैल्यू क्या होता है? 0 से मेरा 4-5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 2 होगा। ओके, इस कंडीशन में थर्मोएसिडोफिल्स खुद को सर्वाइव कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे ऑल्सो फाउंड इन हॉट सल्फर रीजन। इट मीन्स कि ऐसे रीजन में भी ये पाए जाएंगे जहाँ पे सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर जो वो हाई है, तो हाई बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्की बैक्टीरिया डिवीजन. So the Archaebacteria is broadly classified into methanogens that will grow in marshy areas, halophils that will grow in salty areas, and thermoacidophils that will grow in acidic areas where the pH value will be low. So this is all about Archaebacteria. Now अभी तो हम लोगों ने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. अब एक सेकेंड जो किंगडम मोनेरे का क्लासिफिकेशन या किंगडम मोनेरे का जो टाइप है बैक्टीरिया का, वो हमारा है साइनोबैक्टीरिया. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फीचर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है साइनोबैक्टीरिया, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत अमाउंट में पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया. सो साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को BGA भी कहते हैं, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है किंगडम मोनेरा की क्लासिफिकेशन में जो कि फोटोसिंथेसिस करता है. इट मीन्स कि इसके पास ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और इसी के लिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स. सो हमारा साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी कहलाता है.
अब यहाँ पे बात आती है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में सभी को ये पता है कि जब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं या फिर फ्यूजन होता है तो उस कंडीशन में फॉर्म करता है ग्लूकोज, जो कि एज अ फूड होता है प्लांट का। प्लस जो ये रॉ मटेरियल निकालता है या जो रॉ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसका यूज़ नहीं होता है वो होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इस केस को भी हम लोग देखेंगे, ये जो रॉ प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन के टाइम पे। सो साइनोबैक्टीरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन और द स्टेटमेंट विच जनरली आस्क्ड इन नीट एग्जाम। ओके, मेडिकल एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट में ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पे सबसे पहला प्रोडक्शन ऑक्सीजन का हुआ था जिसके थ्रू, तो उसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब जाहिर सी बात है जब हमारा अर्थ था तो उस टाइम पे प्रिमिटिव टाइम पे हम लोग नहीं थे, ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था और उस कंडीशन में प्लांट भी नहीं थे, तो अब ऑक्सीजन का क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा अर्थ पे। तो उस टाइम पे जो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आया था वो बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया कौन था, साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो रॉ प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा निकलता है ऑक्सीजन। तो इसके वजह से जितना ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करता गया उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे अर्थ पे इंक्रीज़ होती गई। तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था अर्थ पे। इसलिए हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो इंक्रीज़ हुई वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से हुई। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। साइनोबैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर, डेफिनेटली सिंगल सेल से बना है क्योंकि ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, एंड इट फॉर्म कॉलोनीज। किंगडम मोनेरा है तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप में रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल इज बाई लेयर्ड। अब बाई लेयर्ड का मतलब क्या होता है, दिस इज 2 लेयर। जनरली जो किंगडम मोनेरा का सेल वॉल होता है वो मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकेन का जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर भी एक और लेयर होता है जिसको हम वैक्सी लेयर कहते हैं। लाइक हम लोग जब कैंडल बर्न करते हैं तो जो मोम पिघलता है ना, वो थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। इन द सेम कंडीशन सेल वॉल के ऊपर एक और थिन लेयर होता है या जिसको हम वैक्सी लेयर कहते हैं, उस लेयर को आउटर लेयर कहेंगे, और उसके बाद फिर हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है जो इनर लेयर कहलाता है। सो द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स, मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से बना होगा। ओके, दैट इज द वैक्सी लेयर, आउटर लेयर। और उसके बाद फिर हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर आएगा जो बेसिकली किंगडम मोनेरा के सेल वॉल में होता है। So this is the outer layer is the waxy layer made up of lipopolysaccharide, and the inner layer will be made up of peptidoglycan, and this is the most important layer of the kingdom Monera. Let's see the food. In what form the food is stored in cyanobacteria? Cyanobacteria अपना food का store अपने body में कैसे करता है? So the food is stored in the form of अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स एंड द सेकेंड इज़ बीटा ग्रैन्यूल्स। अब बात आती है कि जो फूड का स्टोरेज होता है साइनोबैक्टीरिया में वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो अपने फूड को स्टोर करेगा अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में या फिर वो स्टोर करेगा बीटा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। तो अगर अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है देन इट मीन्स कि ये जो है वो स्टार्च की कंडीशन में प्रेजेंट होगा फूड। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, और अगर बीटा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में करता है अपने बॉडी में फूड का स्टोरेज, तो उस कंडीशन में जो फूड स्टोर होगा वो फैट्स के फॉर्म में होगा। इज दिस क्लियर? सो द फूड विल बी स्टोर्ड इन 2 form. द फर्स्ट विल बी आइदर इन द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अल्फा ग्रैन्यूल्स और फैट्स दैट इज कॉल्ड बीटा ग्रैन्यूल्स. Now the next point is, what is the important function of cyanobacteria or what is the important role of cyanobacteria? So the most important function or role of cyanobacteria is nitrogen fixation, the most important point. साइनोबैक्टीरिया जितने होते हैं उसमें मोस्टली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्या है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जब सॉइल में वो नाइट्रोजन सॉइल गेन करता है तो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, और उस नाइट्रोजनस कंपाउंड की कन्वर्जन में जो हेल्प करता है वो हमारा होता है साइनोबैक्टीरिया. इसलिए साइनोबैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है. ओके, सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड
ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, और इसमें जो रोल प्ले करेगा वो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन बेसिकली होता कैसे है? तो जाहिर सी बात है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे तरीके हैं कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें पहला जो होता है वो या तो बाइनरी फ्यूजन करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि पेरेंट्स का जो है वो एक ही पेरेंट होते हैं, वो अपना डिवीजन करते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद फिर 2 डाउटर न्यूक्लियाई बन जाता है, मतलब 2 डाउटर सेल्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। सेकेंड जो है वो अगर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो फिर साइनोबैक्टीरिया फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करेंगे। फ्रैगमेंटेशन की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी को डिवीजन करता है या डिवाइड कर देता है, टुकड़े में तोड़ देता है। अब वो हर एक जो डिवीजन हुआ है या जो हर एक टुकड़ा जो बॉडी पार्ट्स है, जो बॉडी का टुकड़ा है, उससे नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। तो साइनोबैक्टीरिया अगर बाइनरी फ्यूजन से करता है तो ठीक है, और अगर इससे डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। सो रिप्रोडक्शन के 2 वेज होंगे या 2 मोड होगा। फर्स्ट इज द बाइनरी फ्यूजन and second will be fragmentation. Now if we talk about the most famous example of cyanobacteria जो हर टाइम पे आप लोग लिख सकते हैं या फिर बहुत जगह पे बुक में देखने को मिलेगा। So the famous example is Nostoc, Anabina and Oscillatoria. Okay? नॉस्टॉक और अनाबिना जो है ये हमारा फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होता है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, अपना अकेले भी ये रह सकता है, या फिर ये किसी प्लांट के साथ अटैच भी पाया जाता है। तो इस कंडीशन में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करेंगे। सो नॉस्टॉक एंड अनाबिना कैन लिव इन फ्री लिविंग एज वेल एज दे कैन लिव विथ अ एसोसिएशन विथ प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं नॉस्टॉक, अनाबिना और ऑस्किलेटोरिया को, तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि मेन फंक्शन ही साइनोबैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब एक और फेमस एग्जांपल है, दैट इज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? तो स्पाइरुलिना इज अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और ये जो है वो रिच होता है प्रोटीन में, मतलब कि अगर कोई स्पाइरुलिना को अपने एज अ फूड लेता है, खाता है, तो उसको प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अमाउंट में मिलेगी, क्योंकि ये हाईली रिच होता है प्रोटीन कंसनट्रेशन में। सो स्पाइरुलिना जो है रिच इन प्रोटीन्स, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड। तो हम लोग बेसिकली ह्यूमंस या एनिमल्स जो भी होते हैं वो स्पाइरुलिना को ले सकते हैं एज अ फूड सोर्स। सो इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम either in CBSE board as well as in NEET, carrying 1 marks. Okay, so spirulina is a rich source of protein. So this is all about cyanobacteria, some important features जो कि बहुत important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी बहुत सारे फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी दिखेगी, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन है जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने उस पॉइंट को ही सिर्फ उठाया है। तो मैंने डिस्कस किया आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, and in my next video I will discuss about the structure of the bacteria, that is eubacteria, and the properties and function of the eubacteria. So this is all about today's video, and if you want the link for the previous video then you can go in the description box. Okay, there I will provide the link of the previous video. So till then, take care. Thank you so much.